03 श्री ए गणेश मूर्ति। ಮೂರು माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 103 माननीय मंत्री जी। Answer is laid on the table of the House. Honorable members, அமைச்சர் அவர்களுடைய பதிலில் எந்தெந்த ஆண்டுகளில் எவ்வளவு அந்நிய நேரடி முதலீடு தொகை வந்துள்ளது என்பது மட்டும்தான் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். அவை எந்தெந்த நாட்டிலே இருந்து எவ்வளவு வந்துள்ளது, அதேபோல தமிழ்நாடு அரசின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்நிய முதலீட்டிற்காக பெருமுயற்சி எடுத்துக்கொண்டுள்ளார்கள். தமிழ்நாடும் அதிக முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற நிலையில் மத்திய அரசாங்கம் அதற்கு தமிழ்நாடு அதிக முதலீடு பெறும் வகையில் என்ன முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது? You know, I missed the first part in Tamil. You said which project in Tamil? Sir, if I ask the question in English, the minister should आप दोबारा reply से in प्रश्न English करने। only. But Member by asking, the time I got the translation, Speaker, sir, I'm asking member you to asking repeat question what in you Tamil, said. but ministers are answering in repeat, Hindi. only repeat. Honorable member, What is please. that? Honorable, One please, minute. member, repeat. Excuse me, Speaker, Repeat. sir. I can answer in Hindi if I desire. It is available for you in translation. No, in Tamil. when I am speaking in No, Tamil, no, you remember, when I I have a speak right in to Tamil, answer. you also Repeat, repeat. I have a Sir, right to sir, answer sir. in Hindi. Repeat, repeat. Honorable member, repeat. Now, please, please. Please. माननीय मेंबर, प्लीज प्लीज। माननीय मंत्री जी माइक को खोल रहे थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, एकदम तमिल में उनको पता नहीं था, तमिल में क्वेश्चन पूछेंगे। ऑनरेबल मेंबर प्लीज रिपीट। नो, अरे Sir, आप बैठे, आपको किसने मौका दिया? प्लीज ऑनरेबल मेंबर, प्लीज 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 बैठिए। ऑनरेबल मेंबर प्लीज रिपीट। sir, I have given notice in the notice office. Okay, that okay, I no am going problem. to I ask- now repeat. Hello? Honorable, repeat question. Repeat. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் தந்திருக்கிற பதிலிலே ஒவ்வொரு ஆண்டும் எவ்வளவு தொகை அந்நிய நாட்டு முதலீட்டு தொகை வந்திருக்கிறது என்பது குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆனால் எந்தெந்த நாட்டிலிருந்து எவ்வளவு தொகை வந்திருக்கிறது என்பது குறிப்பிடவில்லை. அதேபோல தமிழ்நாடு அரசின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்நிய முதலீட்டிற்கு பெருமுயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். தமிழ்நாடும் அதிக முயற்சி பெறும் வகையில் ஒன்றிய அரசு என்ன முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது? सर, मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं कि ऐसा कोई कानून है क्या लोकसभा में कि अगर एक भाषा में पूछा जाए तो उसी भाषा में जवाब देना है? ऐसा नहीं है ना। तो मैं हिंदी में ही दूंगा, आप उसका ट्रांसलेशन। मैंने भी तमिल का ट्रांसलेशन इसमें लिया। नो प्रॉब्लम। केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, आई एम कंडक्ट टू हिंदी। केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है कि एफडीआई को भारत में और ज्यादा बड़े पैमाने पे लाया जाए। और प्लीज एक मिनट, माननीय मंत्री जी प्लीज प्लीज। सर, नो, I have already given my आप मंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं, आप ये लगा लो, ये ठीक है। ओके, प्लीज 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 सिट डाउन, प्लीज आंसर मंत्री जी, प्लीज 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 आंसर मिनिस्टर, प्लीज आंसर मिनिस्टर। भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि भारत में निवेश विश्व से लाया जाए, जो सुविधाएं देने। नो नो, ऑर्डर आंसर, नो प्रॉब्लम। प्लीज एड्रेस टू चेयर, मेंबर एड्रेस टू चेयर, नो प्रॉब्लम। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार लगातार इन प्रयासों में लगी है कि भारत में अलग अलग देशों से निवेश आए। नहीं, आप लोग रास्ता में आप लोग वैसे क्यों कोई सुन रहे हो? किस प्रदेश से, किस देश से कितना निवेश आया ये पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर उनको बहुत उत्साह है कि एक एक
देश जिस देश से निवेश आता है उसकी जानकारी चाहिए हो तो मैं उनको वो भी उपलब्ध करवा सकता हूं। तो मुझे आनंद है कि तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी अगर निवेश लाना चाहते हैं और बड़े पैमाने पे FDI को प्रोत्साहित करते हैं तो वास्तव में ये अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए। और पूरे देश में ये केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, निजी क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो, मैं समझता हूँ जो देश हित का काम है हम सब ने करना चाहिए। और ये भी खुशी की बात है कि तमिलनाडु जो टॉप के 5 राज्य हैं जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उसमें से एक राज्य तमिलनाडु भी है। तो ये दर्शाता है कि लोग उत्साहित हैं और ज़्यादा तमिलनाडु की सरकार भी प्रोत्साहन दे, अलग अलग स्कीम्स लाए, अलग अलग योजनाओं से देश विदेश दोनों के उद्योगपतियों को अट्रैक्ट करे कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो देश का हित होगा। बजाय के जो उद्यमी हैं, जो उद्योजक हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, उनको लगातार गाली देने के, उनको लगातार बदनाम करने के बदले अगर विपक्ष की पार्टियां और विपक्ष के राज्य सरकारें उनको प्रोत्साहन देते हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत स्वागत की बात है। Honorable member, please supplementary. Sir, I'm responding the chairman, sir. Sir, I gave notice in the notice office that I am going to ask questions, supplementary questions in Tamil. But Minister don't accept it. You. Honorable member, your question answer minister. Please supplementary question, please. Supplementary, that should be, I will ask in Tamil only. That also, I will speak supplementary. in Tamil only. Sir, my supplementary question, sir, my supplementary question. என்னுடைய துணை கேள்வி எளிதாக தொழில் தொடங்குவதில் இந்தியா 190 நாடுகளில் 51வது இடத்தில் உள்ளது. இதன் தரவரிசையை இன்னும் மேம்படுத்த வணிகத்தை எளிதாக்குவதற்கு ஒற்றைச்சாளர அனுமதி மற்றும் பல விண்ணப்பங்களை முழுமையாக ஒன்றிணைக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன என்பதை அமைச்சரிடமிருந்து அறிய விரும்புகிறேன். This is my துணை கேள்வி. बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है माननीय सदस्य ने। केंद्र सरकार ने पूरा जो कोविड का समय था इसको अवसर में बदलते हुए 2-2.5 वर्षों में एक पूरे देशव्यापी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का निर्माण किया है। उसका बीटा लॉन्च भी किया गया है कुछ महीने पहले। इसमें केंद्र की कई सारे डिपार्टमेंट्स, लगभग 30-32 डिपार्टमेंट्स का सहयोग मिला है। तो अलग अलग जो उनकी अप्रूवल्स हैं वो उस नेशनल सिंगल विंडो से होती हैं। साथ ही साथ कई राज्य सरकारों ने भी इस काम में अपने आप को जोड़ा है और ये राज्य सरकारों के अप्रूवल्स को भी हम नेशनल सिंगल विंडो पे लाने में सफल हुए हैं। जो राज्य नहीं जुड़े हैं, मेरा अनुरोध है, सभी माननीय सांसदों को भी अनुरोध है, आप अपने अपने राज्यों में राज्य सरकार को कहें कि वो नेशनल सिंगल विंडो में जुड़े। अगर सर आपकी अनुमति हो तो सभी माननीय सदस्यों को आनंद आएगा सुन के हमने कॉन्सेप्ट क्या किया है। हमने ये किया है कि एक फॉर्म लिया जिसमें बेसिक डेटा सब डाल दिया, यानी कंपनी का नाम हो, उसके डायरेक्टर्स हो, जो साधारणतः जानकारी हर सरकारी एप्लीकेशन में लगती है, एड्रेस, डायरेक्टर्स का एड्रेस, टिन नंबर, पैन नंबर, ये सब जो जानकारियाँ कॉमन होती हैं जो हजारों बार अलग अलग एप्लीकेशन में डालनी पड़ती है, उसके लिए एक कॉमन फॉर्म बनाया और फिर एक एक विभाग को जो जानकारियाँ अतिरिक्त चाहिए वो अतिरिक्त जानकारियाँ अलग वो विभाग मांग सकता है, परंतु बहुत डुप्लीकेशन कम होगा, सरलता से ऑनलाइन सभी अप्रूवल्स लोगों को मिलेगी। मुझे आप सबको सूचित करते हुए आनंद आता है कि हजारों की संख्या में अब कंपनियां उसमें जा रही हैं, उस वेबसाइट पे सैकड़ों एप्लीकेशंस आनी शुरू हो गई हैं, अप्रूवल्स भी ग्रांट होना शुरू हो गया है। अगर सभी राज्य सरकारें, सभी लोकल इकाइयां, पंचायत या कॉरपोरेशन वगैरह भी जुड़ जाएं और हम केंद्र में तो सब मिनिस्ट्रीज को जोड़ ही रहे हैं, तो वास्तव में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ हर उद्योग को, सेवा क्षेत्र के लोगों को, छोटे बड़े सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को, सभी को इसका लाभ मिलना शुरू हो सकता है। No
Honorable member, please sit. Asnan Musiddi ji. जनाब जम्मू कश्मीर में दो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, एक टूरिज़्म का, एक है फूड प्रोसेसिंग का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या फूड प्रोसेसिंग में कोई प्रयास किए गए एफडीआई के, और क्या टूरिज़्म में अगर किए गए तो उसका लाभ क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, कितनी कमिटमेंट्स हो गई और क्या किस स्टेज पर वो पहुँच गया? बहुत अच्छा है कि माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, इससे रिलेटेड नहीं है पर मुझे आपको सूचित करते हुए बड़ा आनंद आता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब माननीय मनोज सिन्हा जी 3 दिन पहले ही दिल्ली में थे, मुझे भी मिल के गए। हमने जो स्कीम जम्मू कश्मीर में उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए जो स्कीम अनाउंस की थी, उससे इतना उत्साह जनरेट हुआ है देश के भीतर भी और देश के बाहर भी कि कई सारे लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है इस नई स्कीम के अंतर्गत वहाँ निवेश करने के लिए। हमारा अनुमान था 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आएंगे, फिर लगा के देखते हुए सबका उत्साह के 48,000 करोड़ के निवेश का अनुमान बना। मनोज जी उस दिन कह रहे थे कि शायद अब लगता है कि 60,000 करोड़ तक जम्मू कश्मीर में निवेश अलग अलग क्षेत्रों में आने के संकेत सामने दिखते हैं। तो जो स्कीम में फंड्स भी प्रोवाइड किए गए वो मुझे बता रहे थे अब कम पड़ेंगे, आपको बढ़ाने की तैयारी रखनी पड़ेगी। पर मुझे आनंद है बताते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिबद्ध हैं कि जम्मू कश्मीर पे बड़े पैमाने पे निवेश आए, बड़े पैमाने में पर्यटन को प्रोत्साहन मिले, अलग अलग उद्योग क्षेत्र के लोग वहाँ आए, सर्विसेज सेक्टर, आईटी सेक्टर, और हमारे युवा युवती जम्मू कश्मीर के आईटी में भी अपना योगदान देना चाहते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में अच्छा उत्साह दिखाई दे रहा है। विदेश से भी निवेश के लिए मैं स्वयं जब श्रीनगर में था तो डीपी वर्ल्ड जो यूएई की नामी कंपनी है उसने एमओयू साइन किया जम्मू कश्मीर सरकार के साथ एक बड़ा फूड पार्क बनाने के लिए। हाल में ही एलजी साहब ने मुझे बताया कि एक और यूएई की कंपनी लगभग 5 लाख फुट का एक बड़ा वहाँ पे शॉपिंग के लिए मॉल बनाना चाहती है। तो देश विदेश दोनों से अच्छा निवेश आने के संकेत जम्मू Question कश्मीर में number 104.